নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্স ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰথমটো খবৰ ভুৱা স্বাস্থ্য বিল জমাতে নিলম্বিত হ'ল এপিডিচিএলৰ ৩৬ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ তালিকাত আছে এজিএম পৰ্যায়ৰ বিষয়া ৮ জুলাইত পোহৰলৈ আহিছিল প্ৰথমটো জালিয়াতিৰ ঘটনা বৰ্তমানলৈ ৩৬ গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ এই কাণ্ডত জড়িত থকাৰ তথ্য জিএমচিএইচৰ ৰেফাৰেল কমিটিৰ আবেদন জালিয়াতি কৰিছিল বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ভঙাগড় থানাত জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকে দাখিল কৰিছিল গোচৰ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো উদযাপন কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৯৫ সংখ্যক জন্মদিবস শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত দিখৌপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ববন্দিত শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিবস এই উপলক্ষে পুৱাই ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ তথা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় অনুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শিল্পী অংশগ্ৰহণ কৰি সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী শিল্পীয়ে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিৱেশনো কৰে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে আজি শিৱসাগৰতো দিখৌপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৯৫ সংখ্যক জন্মদিবস উদযাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই ইয়াতে উপস্থিত আছে জনপ্ৰিয় শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা তেওঁৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব আচলতে আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এই শুভ জন্মদিনটো অসমীয়া জাতিৰ বা চেতনাৰ দিন হওক জাতীয় চেতনাৰ দিৱস হওক জাতীয় সম্প্ৰীতিৰ দিৱস হওক জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সমুজ্জ্বল উত্তৰণৰ দিৱস হওক আৰু জনতাই বা প্ৰজন্মই ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিক জীৱন শিকাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয় কৰি লওক জীৱন শিকাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয় হিচাপে বাছি লওক দেখিব সঁচা সৎ প্ৰেম শিকিব তেওঁ ১৯বিংশ শতিকাৰ তেতিয়াই কৈ থৈ গৈছে যে এই যে মহাকাশত যে গৱেষণা চলিব সেইবিলাক তেতিয়াই কৈ গৈছে গতিকে তেওঁ যুগপুৰুষজনৰ পৰা তেওঁ দেৱতুল্য এজন সাধক হয় এই সাধকজনৰ পৰা জীৱন শিকক ইয়াকেই ক'লোঁ আৰু আছে উদযাপন সমিতিৰ ইয়াত সভাপতি আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আমি ভূপেন্দাৰ জন্মদিনটো ১৯৯০ চনৰ পৰা সেয়া আছিল শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক প্ৰদীপ গগৈ গুজৰাটৰ বদোদৰাৰ এগৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে গণেশৰ মূৰ্তি বনাই জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে গণেশৰ মূৰ্তিৰ দ্বাৰা ৰাইজক কোভিড প্ৰটকল পালন কৰা কোভিডৰ টিকা লগোৱাৰ দৰে সজাগতা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে আমাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ এগৰাকী গুজৰাটৰ বদোদৰাত বাসিন্দা শিল্পী দক্ষেশ জাংগিৰ দক্ষেশ এগৰাকী সুনিপুণ মৃৎশিল্পী তেওঁ প্ৰতি বছৰে গণেশ উৎসৱৰ সময়ত গণপতি বাবাৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰে এই বৰ্ষও দক্ষেশে ভক্তসকলৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিছে গণপতি বাবাৰ মূৰ্তি কিন্তু এইবাৰৰ মূৰ্তিসমূহ কিছু ব্যতিক্ৰম দক্ষেশে কোভিড মহামাৰীৰ সৈতে যুঁজিবলৈ আৰু কোভিড মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে লোকসকলক সজাগ কৰিবলৈ এইবাৰৰ মূৰ্তিসমূহ তৈয়াৰ কৰিছে বিশেষ থিম লৈ সমান্তৰালকৈ তেওঁ তৈয়াৰ কৰা ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তিসমূহ হৈছে ইকো ফ্ৰেণ্ডলি मैंने ये गणपति के रिलेटेड और ये जो 2 साल से कोविड का सीन जो चल रहा था उसको लेके मैंने एक लॉकडाउन के ऊपर गणपति रेडी किए हैं साथ में दूसरी जो थीम है जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं দক্ষেশে তৈয়াৰ কৰা এইবাৰৰ গণপতি বাবাৰ মূৰ্তিত আপোনালোকে দেখিছে ভেকচিনৰ চিৰিঞ্জৰ ওপৰত বহি আছে গণপতি বাবা নতুবা আন কিছু মূৰ্তিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাষতে আছে ভেকচিনৰ চিৰিঞ্জসমূহ কিছু মূৰ্তিৰ হাতত আছে মাস্ক আনহাতে দক্ষেশে এইবাৰ গণপতি বাবাৰ মূৰ্তিৰ লগতে কৰোনা ভাইৰাছৰ এক সৰু মূৰ্তিও তৈয়াৰ কৰিছে মূৰ্তি নিৰ্মাণকাৰী দক্ষেশে কয় এই বৰ্ষৰ গণোৎসৱৰ সময়ত তেওঁ লোকসকলক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ বাবে আৰু কৰোনাৰ তৃতীয় লহৰৰ পৰা বাচি থাকিবৰ বাবে এয়া বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে ये कोरोना का 3rd वेव भी आ रहा है तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए जैसे कि हमें मास्क भी पहनना ज़रूरी है
कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गणेशोत्सव के साथ में अगर कुछ मैसेज दे सकता था तो ये मूर्ति मैंने रेडी किया है। আপোনাক এইখিনিতে জনাই থওঁ চৰকাৰে এইবাৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি সকলোবোৰ উৎসৱ পালন কৰিবৰ বাবে অনুমতি দিছে। প্ৰতিগৰাকী লোকে যাতে কোভিড প্ৰট'কলসমূহ মানি চলে। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত মূৰ্তি নিৰ্মাণকাৰী দক্ষেশ জাংগিৰৰ এই পদক্ষেপ সঁচাই শলাগনীয়। লোকসকলে দক্ষেশে তৈয়াৰ কৰা মূৰ্তিসমূহৰ আঁৰৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ জানক আৰু কৰোনাৰ তৃতীয় লহৰৰ পৰা বাচি থকাৰ বাবে নিজকে সষ্টম কৰি তোলক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। ইয়াৰ লগে লগে সময় হ'ল ইভিনিং হেডলাইন্স সামৰাৰ। ক্ষন্তে সময়ৰ পাছতে আপোনালোকে চাবলৈ পাব দিব্যাংগসকলৰ বাবে বিশেষ বুলেটিন। নমস্কাৰ। नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनू। और आइए देखते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान ने 70 करोड़ का आंकड़ा किया पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को दी बधाई। वियना में संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में कोविड-19 महामारी से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व स्तर पर की गई कार्रवाई पर हुई चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और पुनरुत्थान के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अभियान चलाने का किया आह्वान। नेत्रदान पर मिथकों और झूठी मान्यताओं को दूर करने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियों को शामिल करने पर दिया जोर। भारत जापान के बीच हुई पहली उच्च स्तरीय नीति वार्ता। जलवायु परिवर्तन, समुद्री कचरे और वायु प्रदूषण पर हुआ विचार। दोनों देश पर्यावरण पर द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने पर हुए सहमत। तालिबान ने की अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की घोषणा। मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद होंगे प्रधानमंत्री। विरोधी पक्ष ने तालिबान द्वारा किए गए सरकार गठन को बताया अवैध। और यूएस ओपन के महिला वर्ग में हुआ बड़ा उलटफेर। 19 वर्षीय लिएले फर्नांडीज ने एलिना स्वितोलिना को मात देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। वहीं सबलेंका भी पहुंची अंतिम 4 में। पुरुष वर्ग में डेनियल मेदवेदेव लगातार तीसरे साल सेमीफाइनल में। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश भर में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेजी के साथ चल रहा है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 70 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। मंगलवार शाम 7 बजे तक 70 करोड़ 63,55,796 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है, जिसमें 53,96,20,217 पहली डोज और 16,67,35,579 दूसरी डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट कर बताया कि पिछले 13 दिनों में सबसे तेज गति से टीकाकरण हुआ है और 10 करोड़ खुराक दी गई। उन्होंने लिखा कि कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। भारत को 0-10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन, 10 से 20 करोड़ टीके लगाने में 45 दिन और 20 से 30 करोड़ टीके लगाने में 29 दिन, जबकि 30 से 40 करोड़ में 24 दिन, 40 से 50 करोड़ में 20 दिन, 20 से 60 करोड़ में 19 दिन, 60 से 70 करोड़ टीके अब तक सबसे तेज केवल 13 दिन में लगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। वहीं देश भर में बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कुल 31,222 नए संक्रमित दर्ज किए गए मरीज, जिनमें से केरल में ही सिर्फ 19,688 नए मामले सामने आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वियना में संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में कोविड-19 महामारी से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व स्तर पर की गई कार्रवाई और जनता की सहायता करने में बहुपक्षवादी कार्यनीति की सफलता विषय पर आयोजित आम चर्चा में भाग लिया। महामारी के दौरान भारत द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए ओम बिरला ने कहा कि इस महामारी के दौरान भारत ने मानवता की रक्षा के लिए शीघ्र सहायता पहुंचाने और राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में 150 से अधिक देशों को वैक्सीन, दवाओं और अन्य उपकरणों की आपूर्ति की है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और पुनरुत्थान के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नेत्रदान पर मिथकों और झूठी मान्यताओं को दूर करने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियों को शामिल करके हर राज्य में स्थानीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में जितनी कॉर्निया की जरूरत है उतनी मिल नहीं रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आंखों की देखभाल के लिए ग्रामीण इलाकों में आई अस्पताल खोलने की जरूरत है। एम्स में आयोजित 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों को टीवी और स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स से दूर रखने की जरूरत है ताकि वो इसके एडिक्ट ना हो सकें। भारत और जापान के बीच पर्यावरण के मुद्दों पर पहली उच्च स्तरीय नीति वार्ता की बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने वायु प्रदूषण, सतत प्रौद्योगिकियों और परिवहन, जलवायु परिवर्तन और समुद्री कचरा, फ्लोरोकार्बन और COP26 के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग, कम कार्बन उत्सर्जन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए मजबूत संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने पर्यावरण पर भारत जापान द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को स्वीकार किया और भारत में नई प्रौद्योगिकियों को लाने में जापान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। दोनों देश पर्यावरण पर द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने और JCM पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 11 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 20,000 के करीब है। वहीं राज्य शिविरों में आश्रय लेने वाले लोगों की संख्या भी घटती जा रही है। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुधार हो रहा है। कोसी और गंडक बराज से पानी का बहाव कम हो गया है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में कमी आई है। बाढ़ के कारण लंबे समय से बंद दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल सेवा भी बहाल हो गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 राहत शिविर और 262 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF तथा SDRF की 29 टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 1-2 दिनों तक राज्य में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, जिससे नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ सकता है। और अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार की औपचारिक घोषणा कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस वार्ता कर अंतरिम सरकार का ऐलान किया। उनके अनुसार मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। मुल्ला हसन पिछली तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। वो तालिबान के गढ़ कांदाहार के रहने वाले हैं। तालिबान की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री होंगे, जिनमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुस सलाम शामिल हैं।
मुल्ला बरादर दोहा में स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख रहे हैं। उन्होंने ही अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी कार्यवाहक सरकार में गृह मंत्री होंगे। अमीर खान मुत्तकी विदेश मंत्री होंगे। सरकार को अमारात ए इस्लामी अफगानिस्तान का नाम दिया गया है, जिसके सर्वोच्च नेता तालिबान प्रमुख मुल्ला हैबतुल्ला अखुनजादे रहेंगे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।